So, bolo. Yes. So, hello everyone. I am Vani Agarwal and I am from Media Science student second year. Today, I am with Hydra sir, who is assistant professor at Inspire Knowledge Campus and host in Power Talks and podcast series. Co-founder of Inspire TV and the founder of Drama Club as well. Thank you so much, sir, for coming to our interview session. Thank you for calling me. So, sir, tell me about it. How can I say in Hindi, sir? हाँ. सर आप अपनी पर्सनालिटी को मास कम्युनिकेशन फील्ड में कैसे यूज करते हैं? It's a very nice question, good question, and I think mass communication has added a lot of value in my life. यस सर. When I was growing up, I knew that what I want to do in future. I was very much clear. I wanted to be a part of mass communication, and that personality was imbibed in me since childhood. So whatever I do, it is associated with mass communication. At the level, if I talk about my ninth standard, 10th standard, I was very much inclined towards media. I was doing fake news reporting when I was in 9th standard, 10th standard, because I wanted to be a part of mass communication, and it was inbuilt in me, and I'm utilizing it uh, to its full extent. And on a daily basis, even I told my student as well that they have to utilize this particular era where you have a lot of information, you have a lot of things in front of you. I think you are one of the luckiest, and we are one of the luckiest generation in all over the world, because we have seen television, we have seen smartphone, we have seen internet, we have seen YouTube, all these kind of things we have. And I think we are the luckiest generation, and we can do anything, and the information is just a one click away. Yeah. सर एक सक्सेसफुल मीडिया प्रोफेशनल की पर्सनालिटी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? The most important thing is that you have to be hardworking, because mass communication career is a 24/7 career. You have to be there on the ground. Let's say some, God forbidden, there is some incident took place. As a reporter, you have to go and you have to report. Yes. So you can't just relax and just can't tell that you are not going to the ground zero. You have to be available for this kind of things. So you have to be ready for it, and it's very fast moving. Means every now and then, now you have a short videos like vertical short videos. Now the span of attention has been decreasing day by day. You have 3 or 4 seconds of span of attention. So in a just fast moving world, it is very important to know that the consumer behavior as well. You have to know about the audience. You should be patient. As I mentioned, that you have to be hardworking. So ये सारी qualities होनी चाहिए मेरे हिसाब से. सर ये मास कम्युनिकेशन में सर लाइक कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? सबसे ज़्यादा इसी का ही रोल है, क्योंकि अगर आप ये इंटरव्यू कर रहे हो ना, तो आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस है, तभी तो आप कर रहे हो. Yes, sir. आप अंडर कॉन्फिडेंट होते तो करते ही करते नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंट होते तब भी कर सकते थे आप. लेकिन मिस्टेक ज्यादा होती, मिस्टेक भी ज्यादा हो सकती, हो सकता है लर्निंग भी ज्यादा होती, sir. लेकिन अंडर आप कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं पाता. और क्या तुमने दूसरी क्या चीज बोली? सर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही जरूरी है यार मीडिया में. अब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, यस सर. और मैं अगर ऐसे करके बैठ जाऊं तो लगेगा, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना. सो हमको एक राइट तरीका होता है ना. हम ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ऐसे करके बैठे हुए हैं, हम ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है. सो ये सारी चीजें आपको पता चलती है जब आप मास कम्युनिकेशन में होते हो. जब आप एक फोटो लेते हो ना, तो आप देखते हो बैकग्राउंड कैसा आ रहा है. जैसे बैकग्राउंड है अभी, काफी प्लीजिंग सा बैकग्राउंड है कि नहीं है. अगर हम वो बैकग्राउंड यूज करते हैं जहाँ पे डस्टबिन है, अच्छा लगता है? नहीं सर. तो आप अपने बारे में भी तो सोचते हो, साथ साथ बैकग्राउंड के बारे में भी सोचते हो, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिवील कर रहा है. मान लो तुम किसी शाहरुख खान का इंटरव्यू ले रहे हो और पीछे पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा नहीं लगेगा. लोग यार शाहरुख खान ऐसे यार पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है यार. वही तो आपकी पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ जा रही है कि नहीं जा रही, ये भी बहुत जरूरी है, देखना जरूरी है. तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ सारी चीजें, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. सो पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल आपकी पर्सनालिटी को कैसे इनहेंस करते हैं? पब्लिक क्या बोला? पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल आपकी पर्सनालिटी को कैसे इनहेंस करते हैं? हाँ, लेट्स से कि मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए.
अगर मैं प्रेजेंटेशन ऐसे बोला, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ ऐसा अच्छा नहीं योर लगेगा। स्क्रीन, और मेरे ऐसे हाथ पांव कांप रहे हैं, क्या होगा? ऑडियंस की, अरे यार दिखने में तो ठीक ठाक है, कपड़े भी ठीक ठाक पहने हुए हैं, घबरा रहा है वो, घबरा रहा है, घबरा रहा है। तो मतलब क्या है कि इसकी पर्सनैलिटी में कुछ जो है वो झोल है. सो दैट पर्सन हैज टू वर्क ऑन द पर्सनैलिटी. सो in a mass communication, in a media field, you have to take care of all these things. आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा. वन मोर थिंग, व्हेन यू आर टेकिंग द इंटरव्यू, जो मैंने जवाब दिया ना उसी में से एक सवाल निकालो. तो अभी क्या है ना, तुम फोकस कर रही हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस मत करो, मेरी बातों पे फोकस करो. जब तुम मेरी बातों पे फोकस करोगी ना, तुम्हें और भी क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, चलो. सर एक जर्नलिस्ट के लिए एथिकल और हाँ. प्रोफेशनल पर्सनालिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या मतलब? सर एक जर्नलिस्ट के लिए एथिकल और प्रोफेशनल पर्सनालिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? एथिकल और प्रोफेशनल, हाँ देखिए ये तो दो चीज़ें हो गई. एथिकल भी हाँ प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड है, जर्नलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने हाल ही में देखा कि धर्मेंद्र जी है ना, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, अच्छा, और देश का, दुनिया का सबसे हमारे देश का एक बहुत बड़ा चैनल जो कहता है सबसे तेज अपने आप को बोलता है वो, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि धर्म जी मर गए. सर ऐसा क्यों कि लाइक, मैं बता रहा हूँ. अच्छा सो वहाँ पे ना ज़रूरी ये बात हो जाती है कि आप वेरीफाई करो यार, आप इंडिया के नंबर 1 चैनल बोलते हो अपने आप को, और आप जो मरा नहीं उसको बोल रहे हो मर गए. अभी मैंने देखा वो डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए, तो उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी यार, बताओ यार, हमारे बाप को मार दिया, और वो भी फिल्म स्टार हैं, आम आदमी नहीं है जिसके बारे में आप इतना बूफअप कर दोगे. तो यहाँ पे क्या एथिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए. ऐसी क्या जल्दी है कि आप जो है इंसान को, जिंदा इंसान को मारे दे रहे हो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीआरपी. सो अपने अंदर झांकने की जरूरत है और एथिकली काम करना चाहिए. देखिए जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है दैट यू शुड वेरीफाई द फैक्ट, यू शुड चेक द फैक्ट, यू शुड चेक द स्टैट्स, ईच एंड एवरीथिंग. 2-3 बार वेरीफाई करना है, क्योंकि आप जो बात बोलने वाले हो वो पूरा दुनिया देखने वाली है. तो आपकी कोई ऐसी फैक्ट नहीं होने चाहिए जिसपे आपका इंप्रेशन गड़बड़ हो. वैसे इंडियन मीडिया, हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो अटके ना उस जगह में, ताकि नहीं लोग वो तो ठीक है, वो तो आप कंटेंट की बात बोल रहे हो, लेकिन जो कंटेंट बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है, पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना. अगर वही कंटेंट गलत है तो फिर इस पे ना सवालिया निशान आता है कि आपकी एथिक्स कैसी है. अगर आपकी एथिक्स गड़बड़ है तो बहुत बड़े प्रोफेशनल भी हो, कोई मतलब नहीं है उसका, यस सर. क्योंकि आपका एथिक्स ही गड़बड़ है, और जर्नलिज्म एथिक्स पे चलता है. हाँ. सर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पर्सनालिटी के इम्प्रेशन कैसे बढ़ता है? अच्छा, ये जो सवाल है तुम्हारा वो है पर्सनल ब्रांडिंग को लेके. यस देखो हम सबका जो है वो लिंक्डइन पे अकाउंट है, यस. तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी होगा, इंस्टाग्राम पे भी हो गया. अब ये बताओ, इंस्टाग्राम में तुमने तस्वीर लगाई हुई है, क्या आधार कार्ड वाली तस्वीर है तुम्हारी? नहीं. बहुत ग्लैमरस सी, 4-5 बार तुमने तस्वीर ली होगी, 15-20 फिल्टर उसमें मारे होंगे, तब जाकर के तुमने लगाई होगी वहां पे. यस. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सिनारियो राइट नाउ. तो आप क्या चाहते हो कि आपकी जो पर्सनैलिटी हो वो परसीव ऐसे हो कि आप अट्रैक्टिव लगना, क्योंकि आप चाहते हो मैं बेस्ट वर्जन दिखाऊं अपने दुनिया के सामने. तो आप क्या कर रहे हो, आप पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ही तो कर रहे हो, अपनी ब्रांडिंग ही तो कर रहे हो आप, चाहे वो लिंक्डइन पे क्यों ना हो. कल आपने जैसे तस्वीर लगाई मेरे साथ, जब मैं आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, आपने लगा क्यों, आप दिखाना चाहते हो मैं काम कर रहा हूँ, तुम दुनिया देखो मैं काम काम कर रही हूँ, ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, हाँ, वही सर, लोग देखो आपके ये बारे में कितना जाने. कि आगे बढ़ चुकी है. हाँ, तो आपने क्या किया, आपने अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस किया, ब्रांडिंग की उसकी, किसके जरिए, लिंक्डइन के जरिए. बिकॉज लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल, वो है आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी बात जो है आप रखते हैं, और जितने लाइक माइंडेड लोग हैं सारे वहीं पे हैं इस वक्त. सो वी आर ऑल डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग. तुम मुझे कोई एक शख्स बता दो जो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, तुम्हारे हिसाब से कोई है ऐसा? अभी तक के लिए तो सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट. नहीं होगा, कोई नहीं होगा ऐसा. हर कोई चाहता है कि उसके बारे में बात हो, हर कोई चाहता है कि वो हीरो बने, हीरोइन बने, मतलब दुनिया की नज़र में, चाहे वो कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, औरत क्यों ना हो, वो चाहता है कि दुनिया उसको अच्छी नज़र से देखे, है ना. यस. और हर जगह वो चाहता है उसकी तारीफ हो. किसी को बुरा लगता है किसी की तारीफ हो? नहीं हर कोई चाहता है. सर को खुशी होती है. हाँ, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है. सो समझ, तो लास्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपनी पर्सनालिटी को
कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। देखो एक एक पर्सनैलिटी है, मान लो मैं हूँ, तो मुझे अपने घर वालों को संभालना है, मुझे कॉलेज को संभालना है, मुझे अपनी स्टडीज़ को संभालना है, मुझे अपने बिजनेस को संभालना है, मुझे अपने दोस्तों को संभालना है, सब चीजों की stressful। मुझे अपने रिश्तेदारों को संभालना है, मुझे अपने कलीग को समझाना, मतलब हमको हर चीज़ को साथ में लेके चलना है। और ये सारी चीज़ें करते हुए आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको कभी महसूस होगा यार मेरी बात नहीं मान रहा है, या मेरा ये काम नहीं हो रहा है, सब मेरा वो बात ही काम होता नहीं हो रहा है यार, मेरे हाथ में ये है नहीं, और हम उदास हो जाते हैं, अरे यार हमारी तो जिंदगी ऐसी है, कोई हम पे बस तरस खा ले जल्दी से। सो सेम मेरे साथ घर जाके यही होता है। हाँ, ये गलत सोच है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई तरस खा के तुम पे क्या कर लेगा? तरस खा के किसी को कुछ नहीं मिलता। जो आपके हाथ में, मैं अपने आप से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ महेंद्र सिंह धोनी का। वो क्या बोलते हैं, जो आपके हाथ में है वो उसी पे आपका इख्तियार है, उसी पे आपका कंट्रोल है। जो आपके हाथ में नहीं है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस पर उदास होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उदास होना छोड़ दिया, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, अरे मेरी गलती थोड़ी ना है, अपना तो 100% दिया मैंने। अब कोई नहीं कर रहा है तो इसमें मैं थोड़ी ना करवा लूंगा जाके काम मेरा। कोई मुझे अच्छा नहीं समझ रहा तो मैं क्या बोलूँ, मुझे अच्छा समझो, अच्छा समझो। नहीं समझना भाई, अच्छा जाते दो उसको। तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, अपना अच्छा करते चले जाओ, दूसरों के बारे में इतना मत सोचो, हाँ बुरा मत करो किसी का। So that's it for the interview session. Thank you sir for joining us. Till there, see you all for the next episode for other guests. So thank you so much sir for joining. Thank you so much. Thank you so much. Till there, bye bye. Just 1 minute, Rugo. Just let me know your feedback. How was the feedback? Yesterday you took my English interview. Yes sir. So how was your experience yesterday? Sir, yesterday my experience is very nice because I have learned lots of things. Because I improved my English skills also, and that's all. Okay. What about today? And so today also like I feel so good. लेकिन इंग्लिश मेरे को जैसे अचानक हिंदी में बोलने को मिल गया, थोड़ा सा ऑफर्ड फील हो रहा था बोलने में, तो मिस्टेक से हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत ट्राई करूंगी कि अच्छा करूँ। हाँ, जैसे कल इंग्लिश किया हमने, आज हिंदी किया, दोनों का एक्सपीरियंस मिला। यस सर। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे मिक्स कर लेंगे। यस सर। तो वो हिंदी इंग्लिश ऐसा करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा लैंग्वेज स्विच कैसे हो रही है। यस सर, श्योर सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, यू कैन स्टॉप इट।